इंडिया में ना बहुत लोग शादी करने के पहले भी ये सोचते हैं कि वाइफ उनकी वर्जिन होगी कि नहीं, राइट। काफ़ी लोग ये घटिया सवाल भी करते हैं औरतों को कि आर यू वर्जिन। इट इज़ माई मिस्टेक। He gave me the opportunity to test the vehicle. He gave me the opportunity to drive the vehicle. He gave me the opportunity to look at the vehicle. I was the one who was in hurry. So again I contacted the same friend जिनसे मैंने गाड़ी ली थी, क्योंकि देखो कैसा है गाइस, भले उन्होंने झूठ बोला या छुपा के बोला, अब उनकी कोई मजबूरी रही होगी। अब जिससे ये एक्सीडेंट हुआ, जो हुआ सो हुआ, इट्स अप टू मी कि मैं क्या रखता हूँ, इसको मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। Hey guys, welcome back to your channel Vicky Vlogs, and I'm Vicky, and this is the second part of my ownership video of Vento. In the first part I told you why I bought a Vento over other cars, and also I left you with one question or a thought, that what was that the laptop had written about the Vento which gave me bonkers, which left me literally in a shock. So this second part I'm going to talk about everything in terms of what did I discover at the service center, and since then how much have I spent on service, what all parts have I changed, and what is my experience driving this machine. So guys, first of all, like I was telling you, when I went to the authorized service center just to take the quotation and to decide whether I should do the work from the authorized center about the suspension, the service manager was kind enough, like it is not his job to tell me about, you know, the things which he revealed to me, but looking at, you know, me and the kind of conversation he had with me, he realized I'm a, you know, good guy, and I need to be informed about it. So what happened was, when he was checking the price of those spares and the quotation, he also looked up for the service history, since he had this question like, did I repaint the vehicle, for which I said no. So when he checked the service history, the remarks were the vehicle was in total loss. You heard me right. The vehicle was in total loss, and I was shocked. Total loss mean the vehicle was completely damaged in an accident. And when my friend also heard this, he was like, dude, that's why I told you not to hurry up with this vehicle, with this machine. But I was like, okay, tell us more if you can. I asked the service manager, and I asked him before the total loss, what was his service history like. So this is what he told me. Number one, all the service were done on time at the authorized service center itself, not the same authorized service center, but authorized service center of Volkswagen. Number two, till the total loss was discovered, like I said, all the service was done at the authorized service center on time, and the kilometer readings were correct. So at the time of buying this vehicle, the vehicle had clocked 1,19,000 approximate kilometers, and now I'll show you exactly how much it is. I think it's 135 or 138. I'll show you. And so when I heard that the service was done on time and the kilometers were true, since I had seen, you know, 40-50 vehicles prior buying this one, I discovered that the kilometers were faked. So a lot of dealers had, you know, backed the kilometer readings and everything, and the kilometer reading on this machine was genuine. Then fortunately I had never, you know, made the hypothecation on my name. I had never, I mean, if I were to use the right word, I think that will be ownership transfer. Yeah. So I never transferred the ownership immediately on me, because I took the vehicle, I bought the vehicle, and directly went to this authorized service center in 3 days. So by that time I had not transferred the vehicle on my name. Apparently what happened, that day I contacted the guy who sold me this vehicle, and I asked him that, you know, I came to know that this is a total loss vehicle. You didn't tell me anything about it. I didn't shout at him, or I didn't become pissed off or angry. I'm not that kind of a guy, you know, when it comes to things like these. And he said, you know, no, Vicky भाई आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है. Vehicle was with me, और कब से मैं चला रहा हूँ, पिछले 6-7 महीने से चला रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें. Now this machine I bought in the month of April or May, and the total loss was declared in January. This guy is claiming कि उसके पास वो गाड़ी 6-7 महीने से है. So obviously he was lying. I realized that he is lying, but it's okay. It's totally fine. So I told him, no,
then he was like, in you know what must have happened, there must be a system error in Volkswagen, ऐसा नहीं है, total loss नहीं हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है सॉफ्टवेयर में ही, and these guys must be fooling you. Now I told him कि Volkswagen is a brand, it's a, you know, a name. They might not do these kind of errors for somebody's vehicle कि they would declare total loss. So I told him, no, you check at your end. So he said, okay, just hang on, let me take my uncle on call, the uncle that he spoke to me in the, you know, first video while selling. When that guy came on conference, now this guy was like, you know, in a different zone. So he was not in a, you know, proper mindset to talk and listen calmly. And he was, you know, ready to fight, sort of an attitude tha uska. But I didn't want to anyway create a issue out of it. It is my mistake. He gave me the opportunity to test the vehicle. He gave me the opportunity to drive the vehicle. He gave me the opportunity to look at the vehicle. I was the one who was in hurry. So I can't blame him, right? तो इसलिए मैं ना उसके ऊपर नाराज़ हुआ, और मैंने वो जब अंकल जो उनके थे pretending to be uncle, he was trying to, you know, go overboard, मैंने बोला इनको जिनसे मेरी गाड़ी ली, मैंने बोला कि you know, you leave that uncle, रख दो इनका फ़ोन, इनसे बात करके मतलब नहीं है, you check what is the detail and let me know कि क्यों एक्सीडेंट हुआ था. I am not wanting to sell this vehicle, the reason I bought was to drive the vehicle. So वो बात है. So I said my seller to disconnect his call, क्योंकि वो बदतमीज़ी से बात करने वाले थे. So I told him, you let me talk to you, you get me the details of, you know, why this vehicle was declared as total loss, because 100% इसके साथ एक्सीडेंट हुआ ही है. And he said, okay Vicky bhai, I'll get back to you. Within 1 hour he got back to me and he was like, I checked with the person that, you know, who got me this vehicle, and पता चला कि vehicle का एक्सीडेंट हुआ था. And he sent me some photographs. अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे साइड में आपको लगा दूंगा photographs. So he sent me those photographs. So the vehicle was damaged from this side, you know, from this side. डोर अंदर चले गया था, मिरर टूट चुका था, ऑब्वियसली ग्लास भी टूटा ही होगा, थोड़ा सा ये जो पैनल है ये भी बेंड हुआ था. सो ये सारी दिक्कत थी उसमें. फ़ोटो में डालूंगा, फ़ोटो वैसे भी उतनी क्लियर नहीं थी, इट वाज अ कोलाज. एंड लुकिंग एट द फोटो आई रियलाइज कि बिफोर, यू नो, ये व्हीकल पे काम होने के पहले व्हीकल बहुत दिनों तक खड़ा होगा गराज पे, एंड उसके बाद उन्होंने बना के जो है दे गॉट टू सेल इट ऑन OLX. सो वो बात है. नाउ अपेरेंटली व्हेन ही सेंट मी द फोटोग्राफ्स, माय फ्रेंड वाज लाइक, डूड सेल इट ऑफ, बेच दे, you don't keep the vehicle. Good thing is कि you have not made, you know, done the transfer of ownership on your name, so sell it off. अब मैंने OLX पे भी डाला इसे, बट मेरे अंदर का वो था कि I will not be able to lie to somebody else. भले I have been lied to, मुझे किसी और ने झूठ बोल के गाड़ी बेची, बट वही जो झूठ है मैं किसी और को बोल के नहीं बेच सकता या छुपा के नहीं बेच सकता कि ये गाड़ी इज़ इन गुड कंडीशन, क्योंकि मुझे पता चला है. भले आपको नहीं पता चलेगा, सामने वाला आपको नहीं बता रहा है, बट ऊपर वाला जो है तो देखता ही है, सबको पता ही है, और जवाब वहाँ पे देना ही है. तो भले मैं बेच भी देता, आई वॉज गेटिंग अ गुड प्राइस, जो मैंने ख़रीदा उससे ज़्यादा ही मुझे OLX से मिल भी रहा था, बट वो मेरे दिल में नहीं था कि मैं किसी को अंधेरे में रख के गाड़ी बेचूँ. सो आई केप्ट द व्हीकल. और प्लस दूसरी बात क्या थी, मैं चीज़ों को पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं कभी भी नेगेटिव सोच के नेगेटिव में नहीं जाता हूँ. तो मैंने पॉजिटिव ले लिया कि यार एक तो सर्विस इसकी हुई थी सारी Volkswagen में, तो अच्छी बात है, काम हुआ है. तो आई ट्राइड आस्किंग माई सर्विस मैनेजर ऑल्सो कि आप बता सकते हो टोटल लॉस क्यों हुआ. तो ही कुड नॉट गिव मी एन आइडिया, विच इज़ ओके, ही डिडंट हैड दैट आइडिया, बट दैट्स फाइन. अब द सेकेंड रीज़न टू कीप द व्हीकल वॉज, एक माइंड से प्रेशर हट गया कि मैं सीख रहा हूँ, गाड़ी का पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है, तो अगर मेरे से एक्सीडेंट होता भी है सीखने के टाइम पे, आई विल नॉट फील दैट बैड. तो दैट वाज अनदर पॉजिटिव पार्ट विच आई वाज लुकिंग एट, एंड आई डिसाइडेड टू कीप द व्हीकल. अब मैंने गाड़ी रखी, पहली सर्विस मैंने मोटोफिक्स में कराई थी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया. उनके तरफ से उन्होंने कुछ 6,500 या 7,000 के करीब मुझे चार्ज किया था. उसमें उन्होंने ऑयल चेंज किया था, टॉपअप किया था, कूलेंट वगैरह. दे हैवंट चेंज द फिल्टर्स, दे जस्ट क्लीन द फिल्टर्स. अब दूसरी बात है, द मोमेंट आई गॉट टू नो फ्रॉम द कोर्ट, फ्रॉम द ऑथराइज सर्विस सेंटर, कोटेशन मुझे मिला था सस्पेंशन चेंज का 58,000 with GST 62,000 with suspension. I have also changed the steering rack. अब मैं इसमें लिस्ट में लेके आया हूँ क्या क्या मैंने चेंज किया, कितना कितना मुझे इसका कॉस्टिंग पड़ा है गाइस. सो आई विल बी रिफरिंग टू द मोबाइल, आई एम रियली सॉरी. सो
एट द टाइम ऑफ बाइंग द व्हीकल वॉज मोटोफिक्स के पास जब मैंने सर्विस कराया तो उसका था ओडोमीटर पे 1,19,000। 12 मई को मैंने इसका सर्विस किया था 6,299 का, और मुझे उन्होंने बोला था शॉकअप आप सारे चेंज कर दो, कोटेशन दिया था 23,300 का, जो मैंने वहाँ से नहीं कराया। देन आई वेंट टू फोक्सवैगन फॉर लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ वर्क। क्या क्या मैंने चीज़ें की है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला मैंने जो है वी बेल्ट एंड टाइमिंग बेल्ट चेंज कर दिया। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि टाइमिंग बेल्ट आप चेंज करो फोक्सवैगन और स्कोडा व्हीकल के, बिकॉज 1,20,000 पे वो चेंज करना ही पड़ता है, 120 to 1,50,000। और वो ऐसी बात है कि अगर वो गाड़ी चलते वक्त टूट गया तो आपका इंजन सीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और फिर उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट लाइक बाइंग अनदर सेकेंड हैंड कार। तो आई डेंट वॉन्ट टू टेक द रिस्क, तो मैंने जो है उसका टाइमिंग बेल्ट और वी बेल्ट बदला। टाइमिंग बेल्ट ही बदला, किट नहीं बदली। आई चेक विद द सर्विस सेंटर एंड दे सेड द वॉट एवर दोज इक्विपमेंट्स आर, पुली कहते हैं या जो भी उसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक थी, सिर्फ बेल्ट मैंने चेंज किया। वो मुझे लगा 4,940 का। अगर मैं पूरा टाइमिंग किट के साथ चेंज करता तो वो मुझे तकरीबन 9,000 के आसपास मिलता। बट मैं अभी वो भी चेंज करा दूंगा आफ्टर ड्राइविंग हैविंग ड्रिवन 1 लाख किलोमीटर, मे बी डिपेंड्स, अब फ्यूचर तो नहीं पता कितना मैं रखूँगा इस गाड़ी को। अदर दैन दैट मैंने सस्पेंशन पीछे के और आगे के दोनों चेंज किए। सस्पेंशन के साथ साथ गाइज मैंने जो है इसका स्टीयरिंग रैक भी चेंज किया है, और उसमें सस्पेंशन में सिर्फ शॉकअप ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, लिंकेज होता है, टाई रॉड होता है, वो सारी चीज़ें मैंने चेंज की है, और वो मुझे खर्चा आया है 62,934 का। ठीक है, तो ये मैंने किया था। अब जहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करता हूँ वहाँ पे चूहे बहुत है। अपेरेंटली एक दिन क्या हुआ, मैं गाड़ी चला के आया एंड देन आई पार्क्ड इट एंड द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड द व्हीकल। अब उसमें ग्लो लाइट का जो है इंडिकेटर ऑन हो गया मीटर पे, एंड ग्लो लाइट ऑन हो गया। इट वाज समथिंग रिलेटेड टू द इंजन। आई गॉट रियली वरीड. I contacted my service advisor friend and he told me not to worry, maybe there is a mice who might have eaten the wire. And वही बात थी, कुछ 13 वायर्स चूहा खा चुका था, और वो फिक्स कराया हमने, फोक्सवैगन से ही फिक्स कराया। 6,240 रुपये का हमको लगा, 6,244 टू बी प्रिसाइज। तो ये सारा काम मैंने वहाँ से किया। अब मुझे निकलना था हैदराबाद के लिए। जो आपने वीडियो देखा होगा वो मैं आई बटन पे डाल दूंगा कि हाईएस्ट माइलेज मुझे मिला था 29 किलोमीटर्स का पर लीटर। तो वहाँ जाने के पहले, हैदराबाद ट्रिप करने के पहले एसी काम करना बंद कर दिया, एंड आई गॉट लिटिल वरीड अगेन कि यार एक एक काम निकलते जा रहा है ये वो। सो क्या समस्या हो सकती है इसमें। सो आई वेंट टू अ लोकल गराज सिंस आई डिडंट हैड द टाइम। मुझे रात को निकलना था, मेरे पास सिर्फ दोपहर का वक्त था, तो मैं लोकल गराज पे गया। उन्होंने बोला कि सर आपका जो है एसी का गैस ख़त्म हुआ है, सिर्फ गैस टॉपअप करना है और एक स्विच है वो रिपेयर कर देंगे। तो वो उन्होंने किया और उसका मुझे 2,500 रुपये खर्चा लगा किसी स्विच का और गैस रिफ़िल करने का। विद दैट देन आई स्टार्टेड ड्राइविंग द व्हीकल। परफॉर्मेंस इस व्हीकल की काफ़ी अच्छी, वो मैं आगे कवर करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या स्पेयर्स हमने चेंज किया है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि मैंने क्लच भी रिप्लेस किया है, पूरा क्लच किट। उसमें आपका व्हील भी आता है, द प्लेट, प्रेशर प्लेट, आई मीन टू से प्रेशर प्लेट आता है, क्लच प्लेट आता है। ये मुझे लगा कॉस्टिंग 23,230 रुपीज़ का। ये भी हमने अभी रिसेंटली चेंज किया है, और ये चेंज करने की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि वो आप वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाओगे उसमें। बट वो इशू इसलिए आया बिकॉज वी वर माई फ्रेंड्स जो लर्निंग ऑन इट। तो स्टार्टिंग में आपको पता है नया ड्राइवर जब सीखता है क्लच का थोड़ा हो जाता है इशू। दैट वाज द रीज़न, आई एम ओके विद दैट। फिर मैंने टायर्स भी सारे बदल दिए थे अपॉन टेकिंग द व्हीकल। आगे पीछे हमने गुडियर के टायर डाल दिए, 185, 60, R15, ये चारों टायर हमने नए डाले। ये विथ वॉल्व हमको आया था खर्चा इसका तकरीबन 18,000 रुपीज़। तो टोटल आप यहाँ तक देखोगे 4,940, 62,934, 6,244, 2,500, 23,230 एंड 18,000, तकरीबन 1,17,484 रुपीज़ का मुझे खर्चा आया। तो जो गाड़ी ली वो अलग, और 1 लाख रुपये मैंने खर्चा किया वो अलग। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सर्विस सेंटर से ही करना प्रेफर करता हूँ, भले फिर आपके पास बाइक हो या कार हो। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड ओनली डू फ्रॉम द सर्विस सेंटर। वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा गाइस। और कुछ चीज़ें हैं जो आप लोकल मैकेनिक से करा सकते हो, तो वो कौन सी चीज़ें, दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। जब आएगा तब इस वीडियो के आई बटन में भी वो डाल दूंगा मैं आपके लिए। अच्छा, और एक चीज़ हुई थी, आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर आइए, मेरे फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रनिंग बोर्ड का थोड़ा सा जो है गाइस एक एक्सीडेंट हो गया था मुझसे, और साथ साथ में मैं शायद इमेज डाल दूंगा या प्ले करूंगा। ये जो हिस्सा है रनिंग बोर्ड का,
ये पूरा डैमेज हो चुका था। आप क्लियर वो देख पाएंगे, अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसका काम हो चुका है। देयर आर नो डैमेज एज सच, बट दिस एंटायर थिंग गॉट अ डेंट। वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। सो हम लोग कहीं पे थे पहाड़ों में, पहाड़ों एज इन नॉट इन हिमाचल और समथिंग, हमारे पास सिर्फ इगतपुरी है और लोनावला टाइप में है। तो वैसे कोई एक शॉर्ट ट्रिप पे था मैं, हमने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी थी और बारिश का वक्त था, और एक पत्थर आके वो यहाँ टकरा गया, और जब वो पत्थर आके टकरा गया तो ये पूरा हिस्सा डेंट में हो गया। आई गॉट स्कैर्ड, क्योंकि जब वो टक्कर हुई तो काफ़ी लाउड नॉइज़ आई। इट वॉज लाइक अ बिग थर्ड, एज इफ समथिंग कुछ बड़ा कुछ हो गया। एंड आई सॉ देन देयर वाज अ डेंट। आई वाज अगेन कि क्या हो गया, एंड नाउ अनदर खर्चा। बट नेवरदलेस वेंट टू Volkswagen, एंड व्हाट Volkswagen guy told me, वो मेरे फ्रेंड है काफ़ी अच्छे, कि ये जो अभी है सिर्फ इतना पैनल चेंज नहीं होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं होता है, बट दिस इज़ वन सिंगल पीस जो यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा जो है यहाँ तक, दिस इज़ वन पीस। अब मेरे पास इंश्योरेंस था तो उन्होंने कहा कि ये नया जो पार्ट होता है वो तकरीबन आई थिंक 45 या 50,000 का आता है, एंड सिंस आई हैड इंश्योरेंस दे सेड यू विल हैव टू पे 50% ओनली, दैट विल बी 24,000। बट somebody suggested me, उनका नाम मैं नहीं बता सकता आपको, somebody suggested me कि सर आप मत करो Volkswagen से, better you do it outside, तो आउटसाइड आपका सस्ते में हो जाएगा। सो अगेन आई कॉन्टैक्टेड द सेम फ्रेंड जिनसे मैंने गाड़ी ली थी, क्योंकि देखो कैसा है गाइस, भले उन्होंने झूठ बोला या छुपा के बोला, अब उनकी कोई मजबूरी रही होगी, उसे हम मजबूरी कहेंगे। कहीं पे मैंने सुना था कि किसी वीडियो में कि somebody steals, किसी ने चोरी कर ली, तो बंदे ने कहा उसने, वो चोर नहीं है, वो ज़रूरतमंद था, उसने ज़रूरत थी उसे, तो वो चीज़ लेके गया। सो मेरा भी वही है कि मैंने उससे झगड़ा वगड़ा नहीं किया, ही इज़ इन टच, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने बोला यार ऐसा ऐसा हो गया। ही सेड भाई कम ओवर, मैं आपका फ़िक्स करा के देता हूँ। तो वहाँ गया मैं, एंड वहाँ पे खर्चा जो उन्होंने बताया दैट वाज ओनली 3,500 प्लस 500 डिस्काउंट दिया, बिकॉज मैं उनका फ्रेंड हूँ। तो उन्होंने 3,000 में काफ़ी अच्छा काम कराया है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, और ये डेडिकेटेड ही बनाते गए, सो उसमें भी और काफ़ी सारी हिस्ट्री जोग्राफी मैं बताना चाहता हूँ, देन आई विल कवर दैट। तो वो था एडिशनल खर्चा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। अब मेरा ओनरशिप में बताता हूँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद द माइलेज ऑफ दिस व्हीकल। सो हाईएस्ट माइलेज मुझे मिला है 29 किलोमीटर पर लीटर, जो आप वीडियो आई बटन में मैं डाल रहा हूँ, और एवरेज जो मुझे माइलेज मिलता है वो 24 से लेकर 25 का मिलता है ऑन हाईवे। सिटी में बात करूँ 18 to 20 का माइलेज मिलता ही है, विच इज़ वेरी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस, एंड आई हैव यूज दिस व्हीकल ओनली फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। तो लॉन्ग ट्रिप में अगर मैं बात करूँ तो इंजन जो है इसका टायरिंग नहीं है। लाइक आई वाज टेलिंग यू इन पार्ट 1 कि मैं बाइकर हूँ, तो बाइक पे हमको ब्रेक लेना ही पड़ता है, फिर कितनी बड़ी प्रीमियम बाइक ले लूँ, एक 100-200 किलोमीटर के बाद एक छोटा ब्रेक लेना ही पड़ता है। बट दिस इज़ लिटरली अ वॉल्वो। मैं इसे वेंटो नहीं बुलाता हूँ, इसको मैं वॉल्वो बस ही बुलाता हूँ, बिकॉज ये चलती जाती है, थकती नहीं है। इंजन नेवर मेक्स यू फील कि नाउ इट नीड्स अ ब्रेक। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डीजल इंजन, एंड ऑब्वियसली जर्मन मशीन। गियर शिफ्ट करने के टाइम पे कोई लैग नहीं आता, देयर इज़ नो ड्रॉप ऑफ पावर और समथिंग। आई एम वेरी हैप्पी विद द गियर थिंग। एयर कंडीशन इसकी काफ़ी अच्छी है, कूलिंग इज़ अमेजिंग, लिटरली इट चिल्स यू आउट। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, कमांडिंग पोजीशन है ड्राइविंग करने के वक्त। आई थिंक इट इज़ 5 वे एडजस्टेबल, ऊपर नीचे आगे पीछे, और आप थोड़ा रिक्लाइन भी कर सकते हो, तो टोटल 5 वेज एडजस्टेबल है। आई कीप इट ऑन द हाईएस्ट सेटिंग, ऑन हाईवेज आई कीप इट एट अ एग्रेसिव लेवल, वैसे मैं रखता हूँ। बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज में अगर आपको गाइस दिखा दूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस है स्टोरेज में, और तकरीबन ये मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे भी बहुत कुछ सामान पड़ा हुआ है। इसके बाद वाला वीडियो जो मैं बताऊँगा उसमें बताऊँगा आपको कि क्या मैं रखता हूँ लॉन्ग टूर्स के लिए। बट इसमें लिटरली 500 लीटर के आसपास का स्पेस है, और मैंने काफ़ी सारा सामान लोड करके पैक टू पैक, मतलब कि पूरा घर शिफ्ट किया है अपने फ्रेंड का। सो उतना स्पेस इसमें आ जाता है, विच इज़ रियली अमेजिंग। स्टीयरिंग जो है एक्यूरेट फीडबैक है स्टीयरिंग का, थोड़ा भी आप मिलीमीटर डिफरेंस ले लो एंड दैट व्हीकल मूव्स टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्शंस। वाइपर्स मैंने फ्रेमलेस डाले हैं, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। रोहन ने सजेस्ट किया, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं वीडियो बनाने में। तो पहले जो थे फ्रेमलेस नहीं थे, तो गाड़ी तुरंत लेने के टाइम पे हमने ये फ्रेमलेस वाइपर लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है अभी तक, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। दिस इज़ सेकंड मॉनसून। बूट स्पेस के बारे में मैंने आपको बता दिया।
लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो अंदर जो इसके गाइस स्टोरेज स्पेस है, जैसे अगर मैं बात करूँ दरवाज़ों पे, तो आगे जो है 1 लीटर की बॉटल आ सकती है, विच इज़ गुड फॉर मी। बट जो पीछे जो डोर है उसके ऊपर 1 लीटर का जो है बॉटल नहीं आता, ½ लीटर का बॉटल आ जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ½ लीटर का ही बॉटल आता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे है। अच्छा, पीछे की सीट में जब बैठता हूँ तब थोड़ा अपराइट बैठना पड़ता है। इट इज़ नॉट अ रिलैक्सिंग और थोड़ा आराम से नहीं है, बट इट इज़ मोर ऑफ अपराइट पोजीशन जिसमें आपको बैठना पड़ता है। माइलेज की तो मैंने आपको बात की, बट इसका फ्यूल टैंक है 55 लीटर का, जो अच्छे हाईवेज़ पे, जैसे साउथ इंडिया में जो हाईवेज़ होते हैं नॉन स्टॉप वाले, तकरीबन आपको 1200 to 1300 जो है किलोमीटर्स जा सकती है गाड़ी। एंड इट हैज़ गिवन मी दैट मच अमाउंट ऑफ रेंज। तो ये थी बात गाइस। तो दिस इज़ व्हाट इट वाज अबाउट द ओनरशिप, कि हाउ डिड आई बाय द व्हीकल पार्ट 1, एंड लेने के बाद क्या था वो डिसीजन, मैंने क्यों लिया वो डिसीजन व्हीकल रखने का, और रखने के बाद मैंने इसके ऊपर क्या खर्चा किया है। सो दिस इज़ द थिंग। अब जिससे ये एक्सीडेंट हुआ, जो हुआ सो हुआ, इट्स अप टू मी कि मैं क्या रखता हूँ, इसको मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। एक थोड़ा सा डाइवर्ट होकर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। इंडिया में ना बहुत लोग शादी करने के पहले भी ये सोचते हैं कि वाइफ उनकी वर्जिन होगी कि नहीं, राइट। काफ़ी लोग ये घटिया सवाल भी करते हैं औरतों को कि आर यू वर्जिन। मेरा एक फ्रेंड है, उनका नाम जीतू है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी बात बोली थी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हिज नेम। उसने बोला था कि विकी, जब हम टपरी पे चाय पीने जाते हैं कांच वाले ग्लास में, तो हम चाय वाले को नहीं पूछते कि इसके पहले कितने लोगों ने इसमें चाय पी है, तो वाई शुड यू आस्क अ गर्ल। उसी तरह मेरा माइंडसेट व्हीकल को लेके है। अब मैं यूज्ड कार ले रहा हूँ, कितना भी मैं सोचूं कि एक्सीडेंट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, जो हुआ उसने बताया, जितना मैं पता कर पाया, लेने के टाइम पे पता कर पाया। अब वो मेरे पे है कि मैं कैसे मेंटेन। ओके, तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरा ट्राइपॉड में से निकल गया था। सो वो बात है कि जो है अभी, सो आप मेंटेन करो। आपने शादी की है, लड़की का क्या पास था वो मत सोचो, व्हीकल का क्या पास था वो मत सोचो। लेकिन गाइस, अब आने वाले 2 वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, नंबर 1 कि बूट में मैं क्या करता हूँ हर बार जो लॉन्ग ड्राइव पे मैं जाता हूँ, और आपको भी वो चीज़ें कैरी करनी चाहिए, वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताऊँगा। और थर्ड चीज़ जो मैं बताऊँगा कि जब आप यूज्ड कार लें, when you go to buy a used car, what are the things that you should mandatorily ask the owner। मेरा मानना ये है कि आप लाइफ में गलतियाँ करो, हर बार गलतियाँ करो, बट हर बार न्यू गलतियाँ करो, नई गलतियाँ करो। अब जो मैंने गलती की वो मैंने कर दी। 1 साल में मैं बहुत ज़्यादा मास्टर हो गया हूँ ड्राइविंग में। उसमें बहुत बड़ा श्रेय मेरे फ्रेंड रोहन का है, और बाकी चीज़ें तो आपको खुद से ही आती है, वो मैंने कोशिश की है, तब वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। और जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना करें, वो कैसे अवॉइड करें, उसके बारे में बताऊंगा, हाउ टू बाय अ यूज्ड कार। तो इस वीडियो में रखते इतना ही गाइस। कहीं पे गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव एज ऑलवेज ऑन ऑल माय वीडियोस। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब विकी व्लॉग्स। और इस वीडियो को क्लोज करने के पहले गाइस, लाइक करना मत भूलें। आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।